Thank you, Chirag. Thank you. May I call you Chirag firstly? Of course, yes. नहीं, it's okay to call you. नहीं, आपके fans फिर नाराज हो जाएंगे कि मंत्री को first name से बुलाया. बिल्कुल भी नहीं. Please call me Chirag. Thank you so much. Thank you. But first, before I begin with the podcast, I want to ask you about all this. ये सब, what is it? Is it friendship bands or is it religious significance? क्या है इसका? So yes, it's my friendship with my Mahadev. I'm a huge Mahadev Bhakt. अच्छा. And I am very religious. I'm spiritual. I'm religious. I'm both actually. हाँ. So I visit lot of मंदिर, काफ़ी temples जाता हूँ. और and wherever I go, I get these threads from there. Okay. और साल में 4 बार, अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं. हाँ. So during Navratras, I change all my threads. अच्छा. So 4 times a year I do this. So मेरे पास हर ज्योतिर्लिंग के धागे पड़े हुए हैं मेरे पास. How come you were so spiritual? Is it your upbringing, your parents, mother? So my father was not. He was हाँ. he was a complete Nastik. He was an atheist. And वो बिल्कुल तो नहीं, बिकॉज मॉम करती थी, सो बिकॉज ऑफ हर वो थोड़ा बहुत ज़रूर करते थे, बट बहुत ज़्यादा मंदिर जाना या पूजा करना, ही वॉज नॉट इन टू दैट. But for some reason I was, right from my childhood, I had this inclination, and especially towards Mahadev. Even I used to see pictures or, idols or something. So I used to get attracted, fascinated towards it. And वो gradually over the years, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, वो बढ़ता गया. And but because घर में कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठ का वो नहीं था, so limited ही रहता था. But then past 3 years, personally, it was a very, very difficult time for me. And I think my belief in Mahadev gave me, if nothing else, gave me a lot of gravity, a lot of self-control, which was much needed, अगर ये नहीं होता तो शायद मैं बहुत बिखर जाता, because one after the other, only bad things were happening to me, split in the party, split in the family, everything was taken away from me. I didn't know how to start, from where to start. So I think this gave me a lot of self-control, a lot of gravity. In fact, I wanted to begin the podcast with this picture which we had taken out कि यहाँ मतलब ये जो हुआ था कोविड के दौरान, अब it was a very difficult phase for you. This particular day was very difficult, and this was actually the turning point of everything. हाँ, है ना? Yeah. इससे पहले तक क्या है, 2021 की बात. 2021, और अगर ये मैं ठीक से डेट याद करूं तो मुझे लगता है ये 15 जून की है. 15 जून की है शायद ये. 13 जून की रात, I came to know through media channels that there's a split in the party, and eventually there's a split in the family as well, because my 2 member parliaments were from my family out of the 5, जो मुझसे अलग हुए. And इस दिन तक मुझे उम्मीद थी कि मैं पार्टी और परिवार को एक कर लूँगा. परिवार in the sense that your father had passed away. Yeah. And it was your chacha. हाँ, so it was my chacha. So it was immediately after Papa was gone. So Papa left us 8 October 2020. हाँ. And few months after that, 7-8 months after that, 13 जून रात में 8:30-9 बजे मीडिया से मुझे पता चला कि मेरे पार्टी के 5 सांसदों ने स्पीकर के पास जाकर अलग होने की बात रख दी है. एंड नेक्स्ट डे थोड़ा सा एनालाइज करने में लगा, एंड आई थिंक उसके एक दिन के बाद की 15 जून की ये फ़ोटो है. सो मैं खुद, एंड आई वॉजंट वेल, आई वॉज अंडर टाइफॉइड, दवाइयाँ चल रही थी. मेरे हाथ में कैंडुला बना हुआ है इस फोटो में अगर आप देखेंगे. सो कैंडुला बना हुआ है, ड्रिप चढ़ रहा था मुझे, एंड देयर वॉज a slight weak moment, like my mother, she's always been very strong and very proper, and she's been the, the strength of the family. I've never seen her getting weak. And when I was taking this drip, वो चल रहा था वैक्सीन, दवाई या पता नहीं एंटीबायोटिक जो भी चल रहा था, and I just saw from the corner of my eye that mom is sitting in one corner, she's just crying by herself. वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ. आई जस्ट गॉट अप, मैंने गाड़ी उठाई, एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर चाचाज हाउस विदाउट एनालाइजिंग द फैक्ट कि क्या रिएक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता है, और दरवाज़ा नहीं खुलेगा, ये तो आपने सोचा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था. मतलब ये घर, ये मेरा घर था. मैं धड़ल्ले से आता था, जाता था.
अगर ब्लैक एंड वाइट शब्दों में बोलूं, जाता था, ऑर्डर देता था, मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना दो, ये In fact, मेरा that's the घर first था. time I saw you in that Yeah. house when I came to meet your dad. Yes, And yes. You were just a teenager at that time. It was in this house. और ऑलमोस्ट फॉर एन आवर दरवाज़ा नहीं खुला, गाड़ी तक अंदर नहीं आने दी. बहुत देर तक तो हम लोग गाड़ी में थे. इसके बाद फिर जाके मैंने अंदर नॉक करना शुरू किया, और फिर 15-20 मिनट के बाद वन ऑफ द हेल्पर्स दे ओपन द डोर. और जब दरवाज़ा खुला, सो चाचा तो नहीं थे, बट आई सॉ चाची एंड आई वॉकड अप टू हर. मैंने उनके पाँव छुए, जो मैं हमेशा करता हूँ, उनका आशीर्वाद लिया. और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा, क्योंकि वो तो मेरी माँ है ना. माँ कुछ भी हो जाए, बच्चे से नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, बट बद्दुआ तो नहीं देती. एंड मैंने जब उनके पाँव छुए, वो 2 कदम पीछे हटी और हट के मुझे बोलती हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज. मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों, और मैं कहाँ ऐसा इतना गलत चला गया कि आप इतनी बड़ी बात मुझसे बोल रहे हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है. एंड फिर वहाँ से उस दिन जब मैं वापस आया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइड, मतलब तब समझ में आ गया कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, परिवार और पार्टी अब एक नहीं हो पाएगा. एंड फिर अब उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे. या तो मैं क्राई बेबी बन के रहता और नसीब को और अपने भाग्य को कोसता रहता कि मैंने किसी का क्या बुरा किया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा था. या तो मैं रोता रहता, और या फिर लाइक माई फादर एक फाइटर बन के उभरता और लड़ता. रीस्क्रिप्ट अगेन. है ना कि एक और स्क्रिप्ट लिखो, बिल्कुल, एक और कहानी लिखो, बिल्कुल. टू राइज. बट what I find a little thing is that it's not new. क्योंकि आपने 2012 में जब आप आए थे, तो 2009 के इलेक्शन में 0 था नंबर. Yeah, that's right. 2012 में आप आए एंड आप संभाला. And then फिर एनडीए से फिर अलायंस किया. अलायंस आपने अपने फादर को कन्विंस किया. पापा was very against it. हाँ, टेल मी दैट थिंग कि कैसे कन्विंस किया आपने. Oh, it was very difficult to convince him. Ask me. अच्छा, मैं उतना ही strongly चाहता था, because for some reason, और जो अभी भी है, और इस बीच में मैंने कितने ताने सुने मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर. बहुत बातें मैंने सुनी हैं, एक तरफा प्यार है, अकेला हनुमान बना फिरता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने सुना. बट उस वक्त भी ये था, माई अट्रैक्शन टूवर्ड्स माई प्राइम मिनिस्टर. वो जो बोलते थे, उनकी बातें, उनकी स्पीचेस कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी. एंड आई वांटेड कि हम लोग उनके साथ अलायंस में जाएं. बट पापा वाज वेरी कंफर्टेबल इन यूपी अलायंस दैट टाइम, and he wanted to continue in that alliance. So I remember it was बहुत पहले, मुझे लगता है 2013 अक्टूबर नवंबर की बात है. अभी तो इलेक्शंस में समय थे, 6-7 महीने था. So that time मैंने बहुत हल्के से I told पापा कि आई थिंक हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंसेस भी सोचने चाहिए. सो पापा वाज लाइक कि ऑप्शंस क्या हैं. आई सेड बीजेपी. एंड छूटते ही पापा सेड कि मैं जहर खा लूँगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा. मतलब वो इतना अगेंस्ट थे जाने के. एंड उसके बाद फिर कई महीनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई. बट इतना था कि मुझे इन द मीन टाइम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी. बोर्ड में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की, तो मुझे समझ में आया कि हर कोई चाह रहा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव अलायंस, बिकॉज जिस अलायंस में थे, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बट बिकॉज ऑफ लालू जी एंड राजद की वजह से हम लोग को बहुत कॉर्नर किया जा रहा था. उनकी पार्टी में उस वक्त कई नेता ऐसे थे जो बोलते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए. 2.5 कैसे, एक पापा को, एक चाचा को और मुझे आधा ही मानते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए. पहलवान दिखाएं, इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पहलवान का है. तो ये सारी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स राजद की तरफ से उस वक्त आते थे. सो मतलब पार्टी के कई नेता भी इस सोच के थे कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस कंसिडर करना चाहिए. Papa kept meeting Sonia ji that time, and Sonia ji wanted Papa to meet Rahul ji, but somehow कभी वो मुलाकात ही नहीं हुई. And eventually वो समय बहुत खिंचता गया. You never met राहुल गांधी उस वक्त? No, मी क्या, पापा कभी हम दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई. सोनिया जी से ज़रूर हम लोग की मुलाकातें हुई, 3 बार मुलाकातें हुई. बट तीनों बार शी सेड कि इवेंचुअली राहुल जी से मिली, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ेंगी. उस वक्त 2013 या 12-13 की टाइम, उस वक्त जेटली जी वाज इन टच एंड ही वाज सेंडिंग फीलर्स आल्सो ना. सो यस, वो फीलर्स आ रहे थे. उस वक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे. मेरी बातचीत ज़रूर चल रही थी बिहाइंड द कर्टन, बट
पापा के सामने ये रखे कौन. सो वन डे आई रिमेंबर कि पापा वॉज वेरी अपसेट विद वन ऑफ द मीटिंग. सीपी जोशी जी के यहाँ मीटिंग थी एंड अगेन अलायंस को ही लेकर यूपीए में और ये सब वो सब. एंड पापा वॉज वेरी वेरी अपसेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग. यू नो पापा वॉज लाइक यार मतलब इतना भी क्या, मतलब यू नो आप इतना दौड़ा रहे हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे एंड यू नो यू गाइस आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी. So that was, I don't know, it was a weak moment or what, but पापा just told me गाड़ी में बैठते ही कि तुम बोल रहे थे ना ऑल्टरनेटिव उसका, तो बात करो एक बार. मैं अभी बीच में नहीं आऊँगा बट तुम अपने हिसाब से बात करो, तुम्हें लगता है अगर कुछ वर्कआउट हो रहा है. दैट गेव मी दैट किक कि अब करना है. किससे बात की आपने? राजनाथ जी से? जी, उनसे मेरी बातचीत हुई. उस वक्त काफ़ी लोग थे, रविशंकर जी थे, रूडी जी थे, शहनवाज हुसैन जी थे, सब लोग मतलब ये वो लोग थे जिनसे मेरी वैसे भी बातचीत होती रहती थी. तो तुरंत वो रास्ता मिल गया. एंड काफ़ी दिग्गज नेता है बीजेपी में बिहार से, तो आई एम श्योर कि उस वक्त टू सी यू एज अ यंग पर्सन. So I think if I remember correctly, it was the same night that I had my first meeting also with Rajnath ji. और वहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ने लगी.